Good morning, students. In the last class, we have learned about relations and the different types of relations. They were void relation, universal relation, identity relation, reflexive relation, symmetric relation, transitive relation, equivalence relation. And we have also learned about the domain and range of relations. We have discussed some of the problems based on them. It will be necessary for all of you to keep them in your mind, and thereafter you have to proceed today's class of relation, in which we have to learn about the equivalence class. It should be always kept in mind. If you have not learned those topics which were taught on the last day, it will be difficult for you to understand it, because this chapter is dependent on all those topics which were learned in the class 11th also, and I am going to discuss all of them in the class 12 also. Okay, see here, what is equivalence class? Let us consider on a non-empty set A and a relation are defined on A, then the set of all those elements of A which are related to the element A is said to be an equivalence class generated by A and is denoted by big bracket, under big bracket A. It is defined as equivalence class generated by A is equal to B such that AB belongs to R. You may write B such that A is R related to B. आप एक नॉन एम्प्टी सेट A ले लें और एक रिलेशन R जो कि नॉन एम्प्टी सेट A पर डिफाइंड हो। अगर कोई एलिमेंट A है, स्मॉल a एलिमेंट है सेट A का, तो A से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे B है, AB is R related to B, तो B इसका मेंबर होगा। यानी वो सारे एलिमेंट जो A से रिलेशन रखते हैं, उन्हीं के कलेक्शन को कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय A। इसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। वन, two equivalence classes are either identical or disjoint। अगर दो इक्विवेलेंट क्लास है तो वो या तो एक दूसरे से पूर्णतः एक जैसा होगा, नहीं तो एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होगा। दो इक्विवेलेंस क्लास का एक एक एलिमेंट एक दूसरे से मिलेगा,
अगर वो दोनों एक जैसा है। अगर डिसजॉइंट है तो एक भी मेंबर दोनों में सेम नहीं होगा। नेक्स्ट है एन इक्विवेलेंस relation can be partitioned into mutually disjoint equivalence क्लासेस। अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो कई इक्विवेलेंस क्लास में बांटा जा सकता है जो म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, यानी उसको 2-4 सेट्स के अंदर बांट दिया जाएगा जिसमें एक दूसरे का इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो वो फाई आएगा। फाई मीन्स एम्प्टी सेट आएगा, यानी किसी का किसी से कोई मेंबर मिलेगा नहीं। और अगर सबका यूनियन निकाल दिया जाए तो वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन आपको मिल जाएगा। म्यूचुअली डिसजॉइंट मीन्स नो एलिमेंट इज कॉमन इन 2 of them. Okay, now we come to solve a problem related to equivalence class. See here, the problem is on the set Z of all integers, consider the relation R is equal to AB such that A minus B is divisible by 3, so that R is an equivalence relation on Z. Also find the partitioning of Z into mutually disjoint equivalent classes. आपको रिलेशन R सेट ऑफ इंटीजर्स Z पर डिफाइंड है। अगर कोई R का मेंबर AB है तो उसमें A माइनस B 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यह R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये साबित करना है। मीन्स उसको रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक प्रूफ कर लेना, और तब Z को म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशनिंग करना है। आइए सॉल्यूशन, we have R is equal to AB such that A minus B is divisible by 3. We know that for A belongs to Z, मैंने एक कोई मेंबर Z का लिया, कोई इंटीजर लिया, which implies A minus A is equal to 0, which is divisible by 0 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि 0 को 0 into 3 लिख लें, and therefore A is R related to A for all A belongs to Z. Therefore R is reflexive on Z. Now let A is R related to B. इसका मतलब हुआ A minus B is divisible by 3. अब इसका मतलब है अगर माइनस आप कॉमन ले तो B माइनस A इज डिविजिबल बाय 3. माइनस B माइनस A अगर 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स B माइनस A इज डिविजिबल बाय 3. इसका अर्थ हुआ B is R related to A, where
A B belongs to Z। आपने कोई दूर इंटीजर A और B लिया जहां A B आर रिलेटेड हो, कहने का A माइनस बी अगर निकाले तो 3 से डिविजिबल हो, तो उसका अगर माइनस कॉमन लिए b माइनस है, अगर मान लो 6 डिविजिबल है 3 से, माइनस 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। माइनस को इग्नोर किए तो b माइनस है, अगर माइनस 6 है तो 6 भी डिविजिबल है 3 से, तो b भी आर रिलेटेड टू a हुआ, तो a आर रिलेटेड टू b है तो b भी आर रिलेटेड टू a है। इसका मतलब हुआ इट मीन्स R is symmetric on Z। नेक्स्ट में आएंगे, नाउ let A is R related to B and B is R related to C। मैं ट्रांजिटिविटी की ओर जा रहा हूं, A to B and B to साबित क्या करना होगा, A to C। अब डिफिनेशन से देखें, इट मीन्स A माइनस बी एंड B माइनस C इज डिविजिबल बाय 3। जब दो नंबर 3 से डिविजिबल है तो दोनों का सम भी डिविजिबल होगा। आप ले 9 3 से डिविजिबल है, 6 भी 3 से डिविजिबल है, 9 प्लस 6 15 भी 3 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स a माइनस बी प्लस b माइनस c विल बी डिविजिबल बाय 3। b से b प्लस माइनस कट गया, इट मीन्स a माइनस c इज डिविजिबल बाय 3। इसका अर्थ हुआ A is R related to C, where A, B, C belongs to Z। आपने 3 मेंबर A, B, C लिया, Z से A B से R रिलेटेड है, B C से R रिलेटेड है, तो आप पहुंचे A C से भी R रिलेटेड है। Therefore R is ट्रांजिटिव ऑन Z। आप क्या पाए, R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, R सिमेट्रिक भी हो गया, R ट्रांजिटिव भी हो गया। आपने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। Thus we find R is reflexive, symmetric and transitive as well। Therefore, R is an equivalence relation। क्योंकि R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमको पार्टीशनिंग करना है। देखिए, इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 0, ये क्या होगा, x सच दैट 0 इज R रिलेटेड टू x। जरा सोचे, अब आपको 0 माइनस लाना है, वो डिविजिबल हो 3 से, तो देखिए -6 -5 -4 -6 सॉरी -3 0 3 6 डॉट। आप 0 से इनमें से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 3 से डिविजिबल होगा, यानी ये ईच ऑफ मेंबर क्या है, 0 से R रिलेटेड है। 1 equivalence generated by 1। Here we have to take x such that 1 is R related to x। See here, it will be -5 -2 and 1 3 4 dot।
अगर 0 से आप -1 से -5 घटाएंगे 6 होगा, 3 से डिविजिबल। 1 से -2 घटाएंगे 3 होगा, 3 से डिविजिबल। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा, 3 से डिविजिबल। 1 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 होगा, 3 से डिविजिबल। नेक्स्ट देखिए, इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 2x such that 2 are related to x. This will give -4, -1, 2, 5 in this way. आप देखिए 2 से -4 घटाएंगे 6 डिविजिबल बाय 2, 2 से -1 घटाएंगे 3 डिविजिबल बाय 3। आप इसके सारे मेंबर्स अगर x के जगह इसको रखेंगे तो वो इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 2 के अंदर आएगा। अब आप देखिए हियर नो एलिमेंट इज कॉमन इन एनी 2 ऑफ दिस। इन दो में अगर इसमें या इसमें या इसमें किसी दो में लेंगे तो एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। मीन्स 0 इंटरसेक्शन 1 इज इक्वल टू 5। 1 इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 1 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 2 5। इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 0 intersection equivalence class generated by 2 5, and therefore equivalence also equivalence class generated by 0 and 1 and 2 is equal to 5। but अगर आप तीनों का यूनियन कर लें मीन्स equivalence class generated by 0 union equivalence class generated by 1 union equivalence class generated by 2, जब इस तीनों का यूनियन निकालेंगे तो आप पाएंगे -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपने सेट ऑफ इंटीजर z को प्राप्त कर लिया। कहने का ये सेट ऑफ इंटीजर्स को ये 3 इक्विवेलेंस क्लासेस में बांटा जा सकता है। ओके, अभी जो प्रॉब्लम आपने सोल्व किया वो एक लंबा प्रॉब्लम है, उसको एक दो बार आप दोहराएंगे तब जाकर के वो माइंड में सेट होगा। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में छोटा सा दे रहा हूं। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन which is neither reflexive nor transitive but symmetric। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एक ऐसा रिलेशन देना है जो कि ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं हो लेकिन सिमेट्रिक हो। देखिए सॉल्यूशन में लेट ए बी द सेट ऑफ all lines in a plane, माने कि a set of all lines in a plane है and R be a relation on A defined as here A be the set of all lines in a plane and R be a relation on A defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2। R relation है, अगर L1 L2 उसका मेंबर है तो L1 perpendicular to L2 है। Here for L1 belongs to A, मैंने L1 लाइन लिया है ना। L1 is not perpendicular to L1। कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होता है। Therefore R is not
रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ लेट L1 perpendicular to L2 and L2 perpendicular to L3. See here, this one, this L1 is perpendicular to this L2 and L3 is perpendicular to L2. What you find? Here L1 is parallel to L3. L1 is not perpendicular to L3. That is L1 comma L2 belongs to R and L2 comma L3 belongs to R. यहाँ L1 L2 R का मेंबर हो गया, L2 L3 R का मेंबर हो गया। क्यों? क्योंकि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है और L2 परपेंडिकुलर टू L3 है। लेकिन बट L1 पैरेलल टू L3, यहाँ L1 क्या हो गया? L3 के पैरेलल हुआ, परपेंडिकुलर नहीं हुआ। Therefore L1 comma L3 does not belongs to R. Therefore R is not ट्रांजिटिव। तब R क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। आपने क्या दिया देखा? अगर L1 A से लिया तो L1 is not perpendicular to L1. That is L1 does not belongs to R. कोई लाइन लेंगे तो वो अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसलिए R is not रिफ्लेक्सिव। आगे देखें, हमने दिखा दिया कि ये रिलेशन R जो दिया गया है वो न रिफ्लेक्सिव है न ट्रांजिटिव है। आपको क्या साबित करना है? ये सिमेट्रिक है। लेट L1, L2 belongs to R. इसका मतलब है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू L1 होगा। इसका मतलब है कि L2 L1 भी R का मेंबर है, where L1 L2 belongs to A. Therefore R is neither reflexive nor transitive, but it is symmetric. इस तरह से आपने पाया कि R ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक है। ओके, अब आप देखेंगे कि रिलेशन में कौन कौन मेंबर है वो दिया हुआ है, किस सेट पर डिपेंड है वो भी दिया हुआ है। तब आपको साबित करना है कि वह रिफ्लेक्सिव है लेकिन ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। We have a relation R is equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 on set A 1 2 3. Show that R is reflexive but neither symmetric nor transitive. See here, solution में we have a relation R is equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 defined on A is equal to 1 2 3. Here we have to show it is reflexive but none of the symmetric and transitive. Here 1 1 2 2 and 3 3. आप देखें 1 1 2 2 3 3, यहाँ 1 2 3 है। तो ये प्रत्येक ईच
belongs to each belongs to R. Therefore, A belongs to R. For all A belongs to A. Therefore, R is reflexive. देखें यहां ऑलरेडी दिया हुआ है कि R एक रिलेशन है, तो कभी कभी R को रिलेशन प्रूफ कर भी दिया जाता है। कैसे प्रूफ होगा? क्योंकि R का प्रत्येक मेंबर A क्रॉस A का मेंबर है, तो A क्रॉस A का देखिए 1 1 दोनों इसी का है, 2 2 दोनों इसी का है, 3 3 दोनों इसी का है, 1 2 दोनों इसी का है, 2 3 दोनों इसी का है। इसलिए R क्या है? सबसेट है A क्रॉस A का, इसलिए R क्या है? रिलेशन है। तो R रिलेशन यहां प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर कर भी देंगे कोई बात नहीं। तो R क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव है। अब देखें हियर 1 2 मेंबर है या 2 3 मेंबर है, लेकिन 3 2 नहीं है कहीं, 2 1 नहीं है कहीं। तो हियर 2 3 belongs to R, but 3 2 does not belongs to R. सिमेट्रिक होने के लिए अगर A भी मेंबर है तो B A भी होना चाहिए। यहां तो 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। देखिए 3 2 है कहीं? नहीं है। तो therefore R is not symmetric on A. Further आगे अब आप देखो 1 2 मेंबर है, 2 3 मेंबर है, 1 से 2 2 से 3 1 से 3 1 3 है कहीं? नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। मीन्स 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belongs to R. Therefore, R is not ट्रांजिटिव। अगर आपने पाया R सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है। R इज रिफ्लेक्सिव, यानी ये R एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों में से कोई नहीं है। इस तरह से आप एक्सरसाइज 1 को पूरी तरह बनाने का कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल भी बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो और भी कुछ प्रॉब्लम मैं 3rd क्लास में लूंगा। 3 क्लास के अंदर मैं रिलेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। अब थ्योरी कुछ भी नहीं बचा है, कुछ प्रॉब्लम मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा ताकि आपको सहूलियत होगी। धन्यवाद।